मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में आपको बताऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं, उनकी कितनी कैटेगरीज होती हैं, इसको मैं आपको बताऊंगा। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। Crystalline solids are classified into four categories. And what are these four categories? These four categories are: number first, ionic solid, or it is said to be ionic crystals. Ionic solids or ionic crystals. Number second, covalent solid, or covalent crystals. Covalent crystals. Number third category is what? It is said to be molecular solids. Molecular solids or molecular crystals. Number fourth category is metallic solid. Metallic solids or metallic crystals. Or metallic crystals. Firstly, I shall explain about the characteristic property of ionic solid or ionic crystals. It means number first point is what? Characteristic properties of ionic solids or ionic crystals. Of ionic solids or ionic crystals. I shall explain about the ionic solids or ionic crystal firstly. The first point is what? First point about the ionic solids or ionic crystals are what? All
ionic solids or ionic crystals are made up of charged ions. Made up of charged ions. It means these solids are made up of cations, means positive ions. It is said to be what? Positive ions. And anions means what? Negative ions. Negative ions. It is said to be negative ions. Means it is composed of mainly two types of charged particle. One is said to be cation and another is said to be anions. Means positive ions and negative ions. Next, second point about this. All ionic solids are bonded by Coulombian forces or Coulomb forces. These are same. Bonded by Coulomb's forces. Third point about the ionic solids is what? All ionic solids are also the electrostatic attraction forces. Electrostatic attraction forces electrostatic attraction forces. Fourth point about ionic solids are what? All ionic solids are hard and brittle. हार्ड एंड ब्रिटल मीन्स व्हाट? हार्ड मीन्स ये कठोर होते हैं, ब्रिटल मीन्स ऐसे सख्त हैं जिसको हम किसी हैमर से हथौड़ी से उसको मारते हैं तो चूर चूर रहता है। जैसे शीशा है, जस्ट लाइक शीशे की तरह, ग्लास की तरह वो चूर चूर हो जाते हैं। तो इस फिनोमेना को हम ब्रिटल कहते हैं। ये ब्रिटल यानी ब्रिटलनेस, भंगुरता कहा जाता है हिंदी में, यानी चूर चूर हो जाना। हार्ड मीन्स कड़ा, रिजिड होते हैं, बहुत कठोर होते हैं, इसको हार्ड कहा जाता है। कूलम्ब फोर्सेज मीन्स दो अगेंस्ट अपोजिट चार्जेज के बीच में एक विशेष तरह का इंटरैक्टिव फोर्सेज होता है। अगर दोनों अपोजिट चार्जेज हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हैं, तो उसको कूलम्बियन फोर्सेज कहते हैं, कूलम्ब फोर्सेज कहते हैं। और यही कूलम्ब फोर्स क्या होता है,
ये क्या शो करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्सेज को शो करता है। क्यों? क्योंकि ये सभी चार्ज पार्टिकल ये कैसे बने होते हैं? ये केटाइन से बने होते हैं और साथ ही साथ एनाइन से। केटाइन मीन्स पॉजिटिव आयंस और एनाइन मीन्स नेगेटिव आयन से बने होते हैं। यही रीजन है कि हार्ड और ब्रिटलनेस होते हैं। नेक्स्ट नंबर 5th पॉइंटर व्हाट? These ionic solids are hard and brittle. Number 5th point is what? The melting point. The melting point means MP. MP means शॉर्ट में हम इसको MP को melting point कहते हैं। The melting point means MP and boiling point को शॉर्ट में BP बोलते हैं। BP means boiling point. The melting point and boiling point of all ionic solids और कैसे होते हैं सभी आयनिक सॉलिड के बॉइलिंग और पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट? एक्सट्रीमली हाई, बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ होते हैं, और एक्सट्रीमली हाई। इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट एक्सट्रीमली हाई होते हैं, जितने भी आयनिक सॉलिड्स होते हैं। और क्या प्रॉपर्टी इनमें होती है? दीज आर नॉन कंडक्टर और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. It means electric current cannot pass through the ionic solids when these are present in solid state. These non-conductor and bad conductor of electricity. These are non-conductor and bad conductor of electricity इन सॉलिड स्टेट, जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं तब। इन सॉलिड स्टेट में ये नॉन कंडक्टर या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं इन सॉलिड स्टेट में। लेकिन 7वां पॉइंट क्या है? दीज आर मीन्स दिस सॉलिड्स और good conductor of electricity. These solids are good conductor of electricity in fused or molten state. In fused or molten state. It also shows what? The property of conductivity in the form of
aqueous solution. In the form of aqueous solution. अगर इनका घोल होता है, पानी में घोल लें सॉलिड को और उसमें डीसी सोर्स से 2 इलेक्ट्रोड डाल के उसमें करंट पास करें तो आसानी से करंट पास होती है। अगर ये सॉलिड है, परफेक्टली सॉलिड स्टेट में है, तो हम अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट पास थ्रू दिस सॉलिड्स मीन्स इनऑर्गेनिक सॉलिड इन सॉलिड स्टेट, जब ये सॉलिड स्टेट में होता है। दूसरी बात इसमें और क्या होती है, दूसरी इसमें और विशेषता ये होती है कि अगर ये फ्यूज्ड स्टेट में होते हैं या मोल्टेन स्टेट में होते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, फ्यूज्ड या मोल्टेन स्टेट में इससे इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो हो सकती है, यानी तभी इसके अंदर कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी डेवलप होती है। कब? जब ये फ्यूज्ड या मोल्टेन स्टेट में होते हैं। इट मीन्स दिस सॉलिड्स शो द electrical conductive property of electrical conductive when these are present in fused or molten state. ये इसके बाद हम आपको नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे। इन सॉलिड्स के बारे में नंबर 8वां पॉइंट क्या है, नंबर 8 पॉइंट, ये सॉलिड क्या करते हैं, इन सॉलिड का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये जब भी केटाइन एनाइन इसके जो एटम्स होते हैं ये कैसे फॉर्म होते हैं, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक सॉलिड्स फॉर्म due to transfer of electrons. These solids means ionic solids form ionic bond और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो ये आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा फॉर्म होते हैं और ये क्या होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें और क्या होती है कि जितने भी आयनिक सॉलिड्स होते हैं वे हमेशा केटाइन और एनायंस के रूप में ही फॉर्म होते हैं। इनमें जो एटम अपने नेबर एटम को जो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने वाला वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाला, रिसीव करने वाला, एक्सेप्ट करने वाला वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के आयन से बने होते हैं, यानी ये मेन ये चार्ज आयन इनका मेन कंपोजिशन होता है, यानी चार्ज आयन से ये बने होते हैं। तो ये हमने आपको बताया इन सॉलिड्स के बारे में, मेटालिक सॉलिड आयनिक सॉलिड के बारे में। और क्या विशेषता है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इट्स मेल्टिंग पॉइंट मीन्स MP एज, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट कितना से कितना वेरी करता है, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज या वेरीज फ्रॉम 600 डिग्री सेल्सियस टू 3000 डिग्री सेल्सियस।
इतने के बीच में इनका वेरी करता है। जनरली ये सॉलिड क्या होते हैं, इनके अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स कार्य करता है उसी से ये बंधे होते हैं। हमने आपको बताया था शुरू में, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दीज आर बॉन्डेड बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक सॉलिड्स के बारे में बताया। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं मैं आपको बताऊंगा। इट मीन्स व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आयनिक सॉलिड्स। एग्जाम्पल्स इसके हैं आयनिक सॉलिड्स के, जैसे सोडियम क्लोराइड, NaCl, KCl, CaF2, ये सब क्या है, ये एक तरह से आयनिक सॉलिड है। K2SO4 भी लिख सकते हैं, पोटेशियम सल्फेट एसेट्रा, ऐसे बहुत सारे अनगिनत कुछ हमने आपको बताया एग्जाम्पल के तौर पर। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट हेडिंग आपको मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, कोवैलेंट सॉलिड। यहाँ से ही मैं शुरू कर रहा हूँ। नंबर सेकेंड पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक properties of covalent solids or covalent crystals. Covalent solids or covalent crystals. कोवैलेंट क्रिस्टल्स, इसके बारे में क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है मैं आपको वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करूँ। ऑल कोवैलेंट सॉलिड्स और कोवैलेंट क्रिस्टल्स, नंबर फर्स्ट पॉइंट, ऑल कोवैलेंट सॉलिड्स और कोवैलेंट क्रिस्टल्स covalent crystals are made up of atoms. एटम से बने होते हैं। It means its constituent particles or एटम्स, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कोवैलेंट सॉलिड के एटम्स होते हैं। नंबर सेकेंड पॉइंट इसका क्या है, जो कोवैलेंट सॉलिड होते हैं ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के इनके एटम्स होते हैं और साथ ही साथ इनके अंदर यानी ये किस फोर्स से बंधे होते हैं, तो इसमें वीक वंडरवॉल फोर्स एक्ट करता है। दीज आर बॉन्डेड विथ, माने ये सॉलिड जो कोवैलेंट सॉलिड है बॉन्डेड विथ weak van der Waals forces, by weak van der Waals forces, इलेक्ट्रोस्टैटिक एट्रैक्टिव फोर्स और कूलम्बियन फोर्स से ये फोर्स काफ़ी वीक होता है, उसके द्वारा ये बंधे होते हैं ये सॉलिड्स जो है। और इनमें विशेषता क्या होती है इन सॉलिड्स की। नंबर थर्ड, कोवैलेंट सॉलिड्स और
वेरी हार्ड, ये काफ़ी हार्ड होते हैं, और वेरी हार्ड। नेक्स्ट, हार्ड तो होते ही सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, और क्या होता है, हार्ड होने के साथ साथ ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, माने इनको दबाया नहीं जा सकता, इतने हार्ड होते हैं। इट मीन्स दीज आर इनकम्प्रेसिबल। दीज आर इनकम्प्रेसिबल, ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, और इनके मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं तो ये जेंट मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करते हैं, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 डायमेंशन होता है। इट शोज the 3-dimensional structure and it form giant molecules, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का ये रचना करते हैं, जेंट मॉलिक्यूल्स। मैंने आपको 5th पॉइंट बताया, 5 पॉइंट। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम इसको इरेज कर दें। अब 6 पॉइंट हम आपको इसके बाद बताएंगे। ये 6 पॉइंट इसका क्या है। हाँ, तो मैं आपको 6 पॉइंट इसके बाद बताऊंगा कोवैलेंट सॉलिड के बारे में। नंबर 6 पॉइंट, ये इसका 6 पॉइंट क्या होता है, ये कैसे बॉन्ड को फॉर्मेशन करते हैं, कैसे ये बनते हैं। तो कोवैलेंट सॉलिड्स are formed due to sharing of electrons. ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा फॉर्म होते हैं। एंड it contains single bond, double bond and triple bond। ये तीनों तरह के बॉन्ड फॉर्म करते हैं और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से इनका फॉर्मेशन होता है।
नंबर 7 पॉइंट इसमें और क्या है, जो कोवलेंट सॉलिड्स होते हैं इनका जो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है वो आयनिक सॉलिड की तुलना में कम होता है। इट्स मेल्टिंग पॉइंट MP and boiling point BP, its melting point and boiling point BP or less than आयनिक सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स के तुलना में कम होता है। आयनिक सॉलिड्स 8वां पॉइंट क्या होता है, कम तो होते ही हैं ये, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ये इलेक्ट्रिक के बैड कंडक्टर होते हैं। दीज आर बैड कंडक्टर of electricity. इलेक्ट्रिसिटी के क्या होता है, ये बैड कंडक्टर होते हैं। नंबर 9 और क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर तो होते ही हैं ये, किसमें ये घुलते हैं, these solids or dissolved in which compound, इसमें ये घुलते हैं जो कोवैलेंट सॉलिड्स होते हैं, dissolved in organic solvents, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाता है ये जो सॉलिड्स है, कोवैलेंट सॉलिड। इसके बाद और क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं, साथ ही साथ इनमें और क्या है विशेषता, इनमें और विशेषता ये होती है जो कोवैलेंट सॉलिड्स हैं ये क्या शो करते हैं, कुछ कोवैलेंट सॉलिड्स में क्या क्या नाम आता है, जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है, ये सब क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये भी कोवैलेंट सॉलिड के अंतर्गत ही आते हैं। तो डायमंड is a covalent solid which shows tetragonal structure, but it is good conductor of heat, but while it is bad conductor of electricity. While it is bad conductor of electricity. It is bad conductor of electricity. इसका एक और है
नंबर 11 में ग्रेफाइट के बारे में देखिए, ये डायमंड था, ग्रेफाइट इज ए कोवैलेंट सॉलिड, but it is good conductor of electricity. It is good conductor of electricity. It is good conductor of electricity. It is used as lubricant. It is used as lubricant. It is a feature of graphite and it is feature of diamond. Number 12 point, last point. Its melting point varies from 1200 degrees Celsius to 4000 degrees Celsius. 1200 to 4000 डिग्री सेल्सियस. इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा. कोवैलेंट सॉलिड की एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल जैसे डायमंड है, क्योंकि ये हार्डेस्ट होता है. डायमंड के बाद हार्डेस्ट में कोरंडम का नाम आता है, जो सेकेंड हार्डेस्ट थिंग है. डायमंड है, इसके बाद सिलिका, जिसको SiO2 के नाम से जानते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड बोलते हैं. फिर उसके बाद क्या है? बोरान नाइट्राइट, कोरंडम, etc. These are examples of covalent solids. मैं आज का वीडियो यहीं पर फिनिश करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ का. क्रिस्टलाइंस जो सॉलिड 4 तरह के होते हैं, तो मैंने आयनिक और कोवैलेंट सॉलिड के बारे में प्रॉपर्टी बताया. अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड मेटालिक सॉलिड के बारे में. ओके, थैंक यू टू एवरीवन, माय डियर चिल्ड्रन. थैंक यू वेरी मच. ओके.